Okay, so today we'll be looking at the phase change process, but in a little detailed way. Covering in this particular topic, we'll be looking behind temperature versus volume diagram, particularly for phase change process, which we have already discussed in the last lecture, but यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, and we will also figure out some terminologies associated to that. Second is I will talk about the phase change terminologies. And third point that we will be covering in this lecture is what happens if I change the pressure of the system. Okay, so what will be the corresponding change in the phase change diagram, particularly for temperature versus volume. Let's discuss all this. In our last lecture, if you remember, we have discussed this entire diagram, right? So if you have a liquid at 20 degrees Celsius and the pressure if you have is 1 atmospheric, so you all know that at 1 atmospheric pressure, the water changes its phase at 100 degrees Celsius temperature, right? So it starts evaporating from liquid to vapor at 100 degree. So if you want to do that, you try to heat the water from 20 degree. So as and when you start heating, simply a volume of water will keep on increasing. So you are going on the right hand side, so that you are going this way. And also by providing heat, the temperature increases. So that's why you are going right up. So till what point you will increase the, when you heat up, you will increase the temperature, it will be till saturated point, that is 100 degrees centigrade. Now from here, if you add the extra heat, so as we have discussed, the extra heat added from this point onwards will not rise the temperature of water, but rather will start converting a liquid into vapor form. So this will be continuing on this horizontal line, because temperature nahi badega but vapor badega. So if vapor starts accumulating on top of the vessel, the volume also increases. So that's why we are moving on the right hand side. So this point is the point where all the liquid has got converted to the vapor form. And then from here on, if you apply an extra heat, now then the entire fluid is a gaseous form, and then temperature again rises up. So if you see, there are different names given to different states of this entire process. So the process is from transformation of water from compressed liquid to a superheated state, right? So let us see what are the different phases. So whatever state, so if I talk about the first state, that is compressed liquid or subcooled liquid, तो किसको बोलते हैं हम? Compressed liquid is the one basically कि अगर technically if we define a water that is in liquid phase and not about to vaporize is referred as compressed liquid or subcooled liquid. मतलब कि the water which is in liquid state और अभी vaporize होने के point पे नहीं आया है. Okay, so from this point if you apply little bit of heat, the temperature will rise but the conversion will not take place. Okay, so liquid phase में water जो vapor होने के point पर नहीं आया है, conversion होने के point पर नहीं आया है, those state of liquid water is considered as compressed liquid. So all the states from this and this in between जितने भी states है सारे के सारे blue color line में, all these states are considered as the subcooled or compressed liquid phases. Now, so how can somebody figure out what is compressed phase and what is subcooled phase? So if you see, if somebody wants to figure it out कि compressed phase क्या है, तो क्या कह सकते हैं? At a given pressure, if the temperature of liquid water is less than its boiling point, remember, at a given pressure, if the temperature of the liquid is less than its boiling point, then the state of that water is said to be, or state of that liquid is said to be compressed liquid. तो अगर कोई भी liquid वो गिवन प्रेशर पे अगर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे नहीं है, उससे कम टेम्परेचर पे है, तो ऑल द स्टेट्स आर रिफर्ड एज द कंप्रेस्ड लिक्विड. टेक्निकली आप ऐसे फिगर आउट कर सकते हो. तो कोई अगर आपको पूछता है, इफ समबडी आस्क यू दैट वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कौन सा स्टेट होगा? यू क्लियरली हैव टू से इट्स द सबकूल्ड स्टेट या कंप्रेस्ड लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि 100 डिग्री होगा तो ही जाके वेपोराइज होना चालू होगा, तब तक तो नहीं होगा. Let us look at the next phase, that is saturated liquid or saturation liquid. So what does saturation liquid mean? It means that if a water that is in liquid phase, अभी liquid phase में ही है, but at such an extent that is about to vaporize, इस word को आप underline कर दीजिए, about to vaporize. Okay, तो जो vaporize हो जाएगा अगर आपने extra कुछ heat supply किया तो. So it means a water that is in liquid phase which is about to vaporize on further heating is called saturation liquid. तो इस particular point में ही water is said to be the saturated liquid state. कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी हीट देते हो, 2 जूल, 5 जूल, 10 जूल, so that heat will be utilized in conversion of some quantity of water liquid to the vapor form.
तो उस पर्टिकुलर फेज को आप बोलते हो सैचुरेशन लिक्विड फेज। तो टेक्निकली आप कौन से फेज को बोलोगे कि at a given pressure if the temperature of the liquid water is equal to its boiling point it is said to be saturation liquid। तो अगर आप 1 atmospheric pressure की बात करते हो, so at 1 atm pressure the boiling point of water is 100 degree centigrade, तो अगर liquid water है वो 100 डिग्री पे आ चुका है तो उस फेज को आप बोलोगे कि liquid water is in saturated liquid state। ओके, तो अब यहाँ से क्या होगा, कन्वर्जन होना शुरू होगा, यहाँ पर कन्वर्जन खत्म होता है। तो इस दोनों के बीच में जितने भी स्टेट्स है, वॉट एवर फेजेस ऑफ वाटर आर देयर फ्रॉम बिटवीन दिस ग्रीन पॉइंट टू दिस रेड पॉइंट, ऑल दिस फेजेस आर नॉन अ सैचुरेटेड मिक्सचर। यहाँ पर क्या होता है, in saturated mixture phase you will have the coexistence of liquid plus vapor in a single container। तो आप कह सकते हो कि a state of water where its liquid and vapor phases coexist, मतलब साथ में exist करते हैं, and they are in equilibrium, they are referred as saturated mixture। हाँ, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आपको वेपर और लिक्विड दोनों मिलेगा, बट उनके proportion अलग अलग होंगे। So nearby this saturated liquid zone the proportion of liquid is higher compared to vapor, and if you move slowly to the saturated vapor region, proportion of vapor will keep on increasing and proportion of liquid will keep on decreasing। धीरे धीरे जब यहाँ पर पहुंच जाओगे तो लिक्विड का प्रोपोर्शन 0 हो जाएगा, राइट। सो देन सैचुरेटेड वेपर इज व्हाट, अ वाटर इज दैट इज इन वेपर फेज, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा वेपर कन्वर्ट हो चुका है, वेपर में बन चुका है, विच इज अबाउट टू कंडेंस ऑन फर्दर कूलिंग। तो मतलब ऐसा एक वेपर का स्टेज है कि जब यहाँ से कुछ हीट आपने निकाल दिया, इफ यू हैव जस्ट रिमूव सम फ्यू जूल्स ऑफ हीट फ्रॉम दैट वेपर फॉर्म, और वो फ्यू जूल्स निकालने के कारण द वाटर वेपर विल नाउ स्टार्ट कन्वर्टिंग बैक टू द लिक्विड फेज। तो उस पर्टिकुलर स्टेट को आप बोलते हो सैचुरेटेड वेपर, मतलब यहाँ पर जस्ट दिस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से अगर आपने हीट निकाला तो वापस फॉलो लगा रहेगा ये लाइन, तो क्या होगा, वापस यू विल हैव अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर। सो दिस इज स्टेट, दैट इज एक्सट्रीम स्टेट ऑफ दिस phase change process is known as saturated vapor। So at a given pressure 1 atmospheric पे, if temperature of water vapor is equal to its boiling point, देखिए यहाँ पर जब हमने डिफाइन किया था लिक्विड फॉर्म, तब हमने क्या बोला था, एट अ गिवन प्रेशर इफ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फेज ऑफ वाटर इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट, तो सैचुरेटेड लिक्विड है। और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, एट अ गिवन प्रेशर इफ टेम्परेचर ऑफ वाटर वेपर is equal to its boiling point then it is said to be saturated liquid। तो ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये रेड कलर की लाइन पूरी वाटर वेपर की है, ये ब्लू कलर की लाइन पूरी लिक्विड की है। तो लिक्विड का हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री, वेपर का लोवेस्ट टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री। समझ में आ रहा है। सो द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ वेपर टेम्परेचर इज 100 डिग्री, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड वेपर, और हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 100 डिग्री, तो इस लिक्विड को बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड। इन बिटवीन होगा मिक्सचर होगा। आई होप क्या यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स, राइट। एंड देन व्हाट इज सुपरहीटेड वेपर, कि भाई इस फेज के आगे आपने कुछ भी हीट किया तो जितने भी स्टेट इन बीच में आते हैं ये सभी स्टेट दीज आर ऑल सुपरहीटेड वेपर स्टेट। क्यों, क्योंकि यू हैव एक्स्ट्रा हीट अवेलेबल विद द वेपर, कि थोड़ा भी अगर हीट निकालोगे तो तुरंत आपका वेपर में लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू नहीं होगा। तो टेक्निकली आप क्या बोलते हो, अ वाटर दैट इज इन वेपर फेज विच इज नॉट अबाउट टू कंडेंस ऑन फर्दर कूलिंग इज कॉल्ड सुपरहीटेड वेपर। कि ऐसा कोई वेपर कि जो तुरंत कंडेंस नहीं होगा थोड़ा भी कूल किए तो उसको बोलेंगे सुपरहीटेड वेपर। तो टेक्निकली अगर मैं डिफाइन करूं कि एट अ गिवन प्रेशर इफ टेम्परेचर ऑफ वाटर वेपर इज ग्रेटर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट देन इट इज सेड टू बी सुपरहीटेड लिक्विड। लुक एट द डायग्राम, एट 1 एटमॉस्फेरिक व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर कोई भी वेपर फॉर्म, वेपर टोटल आपका जो है, इफ इट इज टेम्परेचर इज हायर देन 100 डिग्री, मतलब कहीं यहाँ पर है, सो दिस इज सुपरहीटेड वेपर। ओके, तो इसके ऊपर जो भी फेज आपका रहेगा दे आर ऑल सुपरहीटेड, sorry ये liquid बोल दिया गलती से, it is superheated vapor, this should be vapor, so it's my mistake over here, so this should be vapor, not a liquid। Okay, so I hope you got up to this point। So now so far we were talking about heating up the water or heating up any pure substance at constant pressure। Remember this word, हमने अभी भी जो भी किया है we are doing all at constant pressure। हमने यहाँ पर जो प्रोसेस हुई थी फ्रॉम लिक्विड टू सुपरहीटेड वेपर या फ्रॉम सबकूल्ड लिक्विड टू सुपरहीटेड वेपर, उस पूरी प्रोसेस में आपका प्रेशर चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है,
because whenever you heat the fluid over here, okay, from the bottom, the piston का जो हमने बोला था कि it is very very light, so it is massless and बाहर आपका atmospheric air है, so therefore pressure within this water pool was always atmospheric. जैसे ही कुछ pressure बढ़ेगा तो अपने आप piston will slide up, so piston will move up. कुछ भी pressure बढ़ता है तो क्या होता है कि again pressure will be 1 atmospheric. It will redistribute the pressure within the system. So always pressure was 1 atmospheric. But now, so if I talk about at 1 atmospheric pressure, so probably this is zero point 0.1 megapascal. So I hope you know that 1 atmospheric pressure is equals to 101325 pascal. Yes, right. So अगर इसको मैं मेगा पास्कल में कन्वर्ट करूँ तो दिस इज रफली इक्वल्स टू 0.1 मेगा पास्कल, बिकॉज 1 मेगा इज 10⁶ अगर आप चेक करोगे तो, राइट. सो देयरफॉर 1 एटमॉस्फेरिक इज 0.1 मेगा पास्कल. तो उस प्रेशर के लिए जब हमने फेस चेंज प्रोसेस फॉलो किया था तो वी फाउंड समथिंग लाइक दिस. मैं बताऊंगा आपको. तो अब अगर मैं वेट ऐड करता हूँ, यू कैन सी इफ आई पुट एन एक्स्ट्रा वेट ऑन द पिस्टन, व्हाट विल हैपन, जो लिक्विड यहाँ पर था थोड़ा कंप्रेस होगा बिकॉज ऑफ द वेट. सो प्रेशर अभी जो अंदर है ना, द प्रेशर दैट वाटर इज हैविंग, द प्रेशर विल बी ग्रेटर देन 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, एंड दैट वैल्यू विल डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द एक्स्ट्रा मास यू आर पुटिंग इन. इफ यू पुट मोर वेट द प्रेशर विल बी मच मोर. बट अभी अगर हीट चालू करोगे प्रोसेस तो इट विल बी द प्रेशर विद इन द फ्लूइड विल बी कांस्टेंट, बट दैट विल बी अ हायर वैल्यू. इट विल नॉट बी 1 एटमॉस्फेयर बट इट विल बी मोर देन 1 एटमॉस्फेयर. तो लेट अस सी कि अगर 1 एटमॉस्फेयर था तो हमने ये ग्राफ देखा था. सो यू कैन से दिस पर्टिकुलर लाइन रिफर्स द फेस चेंज लाइन और टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, राइट. अब अगर आपने वेट ऐड किया और मान के चलिए कि यू हैव प्रेशर विद इन द वाटर इज 1 मेगा पास्कल, दैट इज 10 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक, है ना. तो 1 एटमॉस्फेयर से 10 गुना बड़ा प्रेशर होगा अगर आपने वेट जो लगाया उसके हिसाब से. तो उस केस में क्या होगा, वेट बढ़ा तो जो वाटर का वॉल्यूम थोड़ा आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो दिस अगर लाइन हम देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इनिशियली, अगर लेट्स से टेम्परेचर वो समवेयर ओवर हियर, ये टेम्परेचर था आपका शुरुआत में, राइट, समवेयर 20 डिग्री लेट्स से. तो जब 0.1 मेगा पास्कल था तब लाइन यहाँ से शुरू हुआ 20 डिग्री पे, और अगर 1 मेगा पास्कल होगा तो वॉल्यूम क्या था आपका, वॉल्यूम इनिशियली ये था, दिस वाज द वॉल्यूम. तो थोड़ा कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं चालू यहाँ से होगा, राइट. So next line will be starting from just a prior point, but so this will be the line that will be followed during phase change when you increase the pressure. But again pressure is constant. This entire line indicates constant pressure of 1 megapascal. अब इसमें changes क्या है? Let us look at this. If you closely look at this line, this particular point and this particular point, हमने आगे देखा था कि as and when the pressure is increased, the boiling temperature or boiling point of liquid will also increase, राइट. तो अगर 0.1 मेगा पास्कल पे आपका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था, तो जब 10 गुना ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका है द बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर. सो लेट्स से बॉइलिंग पॉइंट, न्यू बॉइलिंग पॉइंट इज समवेयर ओवर हियर, दिस इफ आई एक्सट्रापोलेट दिस. समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके. और दूसरा क्या होगा कि द ये वॉल्यूम देखोगे आप सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट का, वॉल्यूम इज ऑल्सो लिटिल हायर कंपेयर टू द प्रीवियस वन. अब ये कहाँ तक कंटिन्यू होगा, आपका सेचुरेटेड वेपर फॉर्म तक कंटिन्यू होगा. बट अगर दोनों में कंपैरिजन करोगे इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, यू विल सी दैट द सेचुरेटेड वेपर पॉइंट फॉर अ लोअर प्रेशर वाज एट हायर वॉल्यूम, बट वॉल्यूम ऑफ सेचुरेटेड वेपर फॉर्म ऑफ अ हायर प्रेशर इज एट लोअर वॉल्यूम. दैट मीन्स ये जो लेंथ थी फेस चेंज की वो कम हो चुकी है यहाँ पर, राइट, फॉर अ हायर प्रेशर. एंड इफ यू फर्दर इंक्रीज द प्रेशर, लेट्स से इफ यू अगेन इंक्रीज 10 पास्कल कर देंगे आप, मतलब एटमॉस्फेयर से 100 गुना बड़ा, 100 टाइम्स मोर, तो ये लाइन वापस कुछ और यहाँ से शुरू होगी एंड दिस विल बी इवन हायर देन दिस. तो ये जो लाइन आप देख रहे हो वो है आपका 10 मेगा पास्कल के लिए. इवन इफ यू इंक्रीज इट फर्दर 15 मेगा पास्कल तो एक और लाइन मिलेगा आपको. सो इफ यू कंपेयर, अगर आप थोड़ा छोटा वैल्यू लोगे, लेट्स से यू आर टेकिंग लेसर लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हो 0.01, तो ये 1.1 यहाँ पर तो इससे नीचे आएगा, यहाँ से कुछ शुरू होगा, यू कैन सी. So now what do you mean by this? You can very easily predict कि आप ये देखोगे as and when my pressure increases upward, ये जो length है phase change process का जो line है, it is reducing. Okay, it is reducing. So you can see the changes in volume is now reducing. That means what? अगर मैं आप देखेंगे जितने भी blue lines हैं, ये सारी blue lines जो भी आपको दिख रही है वाली, they are all liquid form,
वायोलेट लाइन जो आप देख रहे हो, ये वाली वायोलेट, दे आर ऑल मिक्सचर फॉर्म, और रेड लाइन जो देख रहे हो, दे आर ऑल वेपर फॉर्म। ओके, तो अगर मैं इसको थोड़ा एक डायग्राम बनाऊं तो यू कैन सी ए परफेक्ट काइंड ऑफ कर्व, ये आप कर्व देख रहे हो। सो दिस कर्व इज कॉल्ड सैचुरेशन कर्व, और ये सैचुरेशन कर्व में देयर इज सम स्पेसिफिक नेम्स टू दिस, क्योंकि लुक एट द पार्ट, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कर्व, आप अगर मैं फॉर एग्जांपल, हाँ, आप ये देख रहे हो, ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये ग्रीन कलर का मैंने किया है, सो दिस पार्ट इज नोन एज सैचुरेशन लिक्विड लाइन। वाई? इसके लेफ्ट साइड में आपका पूरा लिक्विड फॉर्म है, इसके राइट साइड में आपका पूरा मिक्सचर फॉर्म है। तो ये जो लाइन है वो दिस इज अ सेपरेटिंग लाइन बिटवीन अ मिक्सचर एंड द लिक्विड, और ये लाइन क्या है आपकी सैचुरेटेड लिक्विड, क्योंकि इस लाइन के जो हर एक पॉइंट है वो कोई ना कोई सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट एनालाइज कर रहा है, राइट। सिमिलरली राइट साइड का जो पोर्शन है, इट इज अ डिमार्केशन बिटवीन अ वेपर फॉर्म एंड अ मिक्सचर फॉर्म, इसको आप बोलते हो सैचुरेटेड वेपर लाइन, क्योंकि इस लाइन के जो हर एक पॉइंट है दे आर सैचुरेटेड वेपर स्टेट ऑफ एट डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स, राइट, इसलिए इसको बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो मैं अगर थोड़ा रीजन के हिसाब से देखूँ टीवी डायग्राम में, तो ये रीजन जितना भी ग्रीन के लेफ्ट साइड में उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड लिक्विड, राइट। इसके अंदर जो है डॉम, ये जो आपको कर्व दिख रहा है, इसके अंदर का पोर्शन पूरा क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। कभी कभी इसको वेट रीजन भी बोलते हैं, बिकॉज ये लिक्विड का कंटेंट इसके अंदर आता है इसलिए। और ये राइट साइड वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं सुपर हीटेड वेपर रीजन। तो 5 फेज देखे थे, कंप्रेस लिक्विड और सबकूल्ड, सैचुरेटेड लिक्विड, मिक्सचर, सैचुरेटेड वेपर और सुपर हीटेड वेपर। तो ये आपको टोटली डायग्राम में दिख रहा है। तो कल आपको कोई भी पॉइंट, लेट्स से यू टॉक अबाउट वाटर, विद दिस डायग्राम यू कैन इजीली प्रिडिक्ट कि भाई वाटर कौन से फॉर्म में होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई मुझे बोलता है कि वाटर का प्रेशर लेट्स से यहाँ पर आपका 100 डिग्री आता है, समवेयर ओवर हार्ट इज 100 डिग्री, राइट। 100 डिग्री यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट आपका जो होगा वो सैचुरेशन प्रेशर का पॉइंट होगा, 1 एटमॉस्फेरिक। तो ऐसा कुछ जाएगा आपका कर्व, ये आपका P इक्वल टू 180 एम्पियर। ना समबडी से में कि भाई एट 100 डिग्री प्रेशर आपका वाटर का जो है इट इज लेट्स से, सॉरी, प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक है, आपका टेम्परेचर 80 डिग्री है, तो 80 कहीं यहाँ पर आएगा, राइट, 80, और प्रेशर आपका 1, मतलब यही लाइन पे जाना है आपको 1 एटमॉस्फेरिक, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट है। तो आप चेक करिए, द पॉइंट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रीन कलर लाइन, सो इसीलिए कंप्रेस लिक्विड फॉर्म है। कोई बोलता है कि भाई आपका जो टेम्परेचर है 1 एटमॉस्फेरिक पे वाटर का, वो आपका 120 डिग्री, मतलब 120 समवेयर ओवर हियर, एंड इफ यू एक्सट्रापोलेट दिस लाइन एक एटमॉस्फेरिक पे लेके आओगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आता है, राइट। सो दिस पॉइंट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 120 डिग्री टेम्परेचर। तो ये पॉइंट कहाँ पर, इट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस रेड कलर लाइन, सो वो कौन सा फॉर्म होगा, सुपर हीटेड वेपर फॉर्म होगा उसका। समझ में आ रहा है? सो यू कैन इजीली प्रिडिक्ट फ्रॉम दिस ग्राफ कि कौन सा फॉर्म होगा। अब इस ग्राफ का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है ये वाला, देखो जहां पर सैचुरेटेड लिक्विड और वेपर दोनों मर्ज हो रहे हैं, मतलब अगर आप देखेंगे, हमने डायग्राम देखा था कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन लिक्विड एंड वेपर फॉर्म धीरे धीरे कम हो रहा है, और यहाँ पर तो बिल्कुल ही डिमार्केशन नहीं है। सो दिस पॉइंट इन टेक्निकल टर्म्स इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, टेक्निकल इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट एट विच द सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर स्टेट्स आर आइडेंटिकल, कोई तफावत आपको मिलेगा ही नहीं, और यू विल नॉट ऑल्सो यू विल नॉट बी एबल टू सी कि कब आपका पानी का तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो गया, एब्रप्ट चेंज होता है उस फॉर्म में। और जो आजकल के पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट्स मेनली, दे आर ऑल सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ से जो प्रेशर लाइन निकलेगी ना, जैसे ये आपकी बहुत सारी ऐसे दे आर ऑल कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन्स, राइट, ऐसे आपकी प्रेशर लाइन है सारी की सारी। सो एज यू गो अप द प्रेशर इज हायर एंड हायर, तो यहाँ से जो निकलेगी ना उसका प्रेशर पता है क्या होगा। Let me talk about temperature and pressure. So at this point temperature is 373.95 डिग्री सेल्सियस, particularly for water की बात कर रहा हूँ। वॉल्यूम कितना होगा 0.003 मीटर क्यूब पर केजी, और प्रेशर जो है वो आपका है 22 मेगा पास्कल। That means it is probably you can say 220 times more than that of atmospheric pressure. तो अगर आप पानी को इतने प्रेशर पे लेके आओगे और फिर अगर फेस चेंज करने की कोशिश करोगे ना, तो उस टाइम पे यू विल नॉट इवन नोटिस कि आपका लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन कब हो गया, अब्रप्ट चेंज होगा। एंड मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स आर ऑपरेटेड अबव दिस रीजन, द ओनली रीजन इज बिकॉज दे वुड लाइक टू ऐड द हीट एट मोर एंड मोर हायर एंड हायर टेम्परेचर। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर हायर टेम्परेचर पे आप हीट ऐड करते हो तो एफिशिएंसी बढ़ती है कोई भी सिस्टम की। तो ये क्यों होता है वी विल सी इन द डिटेल इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, बट अभी के लिए आप इतना समझो कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए, राइट।
So critical point is defined as a point at which the saturated liquid and vapor states are identical. So ये आपकी critical point है water के लिए, ये जो values मैंने बताई आपको. So let us now look at what do you mean by saturation temperature and saturation pressure. एक बहुत simple definition है, आप पढ़ चुके हैं, but still I'll make it very clear कि what is saturation temperature? At a given pressure, the temperature at which a pure substance changes its phase is called a saturation temperature. इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी एक गिवन प्रेशर पे ऐसा टेम्परेचर जहां पर उस सब्सटेंस का फेस चेंज होगा उसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेशन टेम्परेचर. तो वाटर की अगर बात करते हैं, सो लेट्स से अगर मेरे पास 1 एटमॉस्फेरिक या 0.1 मेगापास्कल प्रेशर की बात हम करते हैं, वाटर की मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस प्रेशर पे आपका सैचुरेशन टेम्परेचर कितना होगा? इट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर आप 1 मेगापास्कल की बात करो तो सैचुरेशन प्रेशर कितना होगा? इट विल बी हायर देन दिस. 10 की बात करो तो ये होगा, 15 की बात करो तो ये होगा. So I mean to say कि saturation temperature is a temperature at which the fluid will start changing the phase. Okay. उसका उल्टा, what is saturation pressure? At a given temperature, the pressure at which the pure substance will change the phase is called saturation pressure. मतलब कि आपको मान लीजिए दे दिया है लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री पे व्हाट इज सैचुरेशन प्रेशर? इट इज अ प्रेशर एट विच इज चेंजेस द फेज, तो वो होगा आपका 0.1 मेगापास्कल. मतलब 100 डिग्री पे कौन सी लाइन आपकी, ये जो आप फेस चेंज देख रहे हो डॉम के अंदर का, वो कौन सा प्रेशर पे होगा? 0.1. सपोज यहाँ पर कुछ है कोई वैल्यू टेम्परेचर का, तो वहां पर सैचुरेशन प्रेशर क्या होगा? जो भी प्रेशर ये लाइन को करस्पॉन्ड कर रहा है, दिस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन. समझ में आ रहा है? सो दिस इज, तो मतलब वाइस वर्सा है, एक को एट अ गिवन प्रेशर आप टेम्परेचर की बात करोगे तो सैचुरेशन टेम्परेचर हो जाएगा. सो अगर मैं बात करूँ वाटर के लिए तो 100 डिग्री पे सैचुरेशन प्रेशर इज 0.1 मेगापास्कल और 0.1 मेगापास्कल प्रेशर पे सैचुरेशन टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस. दे आर वन आर द सेम. बट कहने का मतलब ये कि ये कॉम्बो है एट विच द फेज चेंज प्रोसेस टेक्स प्लेस. मतलब इसका मीनिंग इतना ही है. ओके. सो अगर मैं वाटर के लिए एक टेबल बनाऊँ, ये एक्चुअल डेटा है, एक्सपेरिमेंटेड डेटा, तो यहाँ से आपको पता पड़ जाएगा कि दिस इज अ टेम्परेचर और यहाँ पर प्रेशर की बात है. प्रेशर जो यहाँ दिया हुआ है वो किलो पास्कल में दिया हुआ है, राइट. तो इफ आई टॉक अबाउट 100 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वैल्यू है आप यहाँ चेक कर सकते हैं, 101.4. तो कहीं ना कहीं ये है, हम लोग नॉर्मल ये मानते हैं कि 101.325 पास्कल किलो में है, इसीलिए 0.3 पॉइंट आगे ले लिया, तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. प्रेशर अगर आप बढ़ा नीचे जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, चेक करो, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इंक्रीजिंग. तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका, चेक करो, टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ओके. सो 476.2 किलो पास्कल पे द बॉइलिंग पॉइंट इज 150 डिग्री सेल्सियस. बट उसका उल्टा ऊपर भी देखो, जैसे ऊपर जा रहे हो प्रेशर कम हो रहा है तो आपका बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम हो रहा है. सो इनफैक्ट आप इतना कह सकते हो कि जैसे अभी टेम्परेचर आपका कितना होगा, रूम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लेट्स से इट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 30 डिग्री में पानी कैन गेट कन्वर्ट टू द वेपर फॉर्म बहुत इजीली. कैसे? अगर पानी को आप इस प्रेशर पे लेके आ जाओ 4.25 के नीचे, 4.25 के नीचे अगर लेके चले जाओ ना प्रेशर पे, तो 30 डिग्री में भी आपका लिक्विड से वेपर कन्वर्ट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा. आई होप यू गेटिंग दिस. तो अगर मैं ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का एक ग्राफ प्लॉट करूँ, सो आई सी ग्राफ लाइक दिस. आप देखिए, ये मैंने यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में रखा हुआ है. ओके. तो मैं शुरू करता हूँ, ये आपका किलो पास्कल में है, राइट. तो 100 डिग्री पे समवेयर ओवर हियर ये है आपका, तो ये आपका हो जाएगा अराउंड 101 के आसपास में, 100 डिग्री पे 101 के आसपास में, राइट. तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ रहा है या प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर, तो ये आपका पूरा कर्व है जो कह सकता है कि दिस कर्व रिप्रेजेंट्स द कर्व फॉर सैचुरेशन टेम्परेचर एंड सैचुरेशन प्रेशर. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये वाटर के लिए है, ऐसे हर एक प्योर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा, बट ट्रेंड जो है वो मोर और लेस सिमिलर रहेगा. ट्रेंड आपका ये रहेगा, कोई भी प्योर सब्सटेंस के लिए अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, you will see that boiling temperature also increases. So today we have covered all these points about phase change process of water, what is temperature versus volume diagram, then we have seen the phases terminologies, and we have also seen कि भाई अगर phase change process of different pressure पे करते हैं, higher pressure पे या lower pressure पे, तो वो जो curve है वो कैसे change होता है TV curve का, we have seen that, right. And हमने also हम dome देख लिया है TV curve के, what is the saturation dome and what do you mean by different regions of that dome. So I hope this is clear to you. I'm open to your doubts if you have any, otherwise we will stop it over here. Thank you so much.